Yeah, okay dear, all of you are there. करें शुरू. हाँ, क्या कहते हैं, आवाज नहीं आ रही. Yes, sir. चलो गुड. चलो वो तो था रिफर का. लेट्स डू लिटिल बिट अबाउट दिस रोरो शिप्स. एनी ऑफ यू हैव डन द रोरो शिप्स? कार कैरियर या रोरो किया किसी ने? No, sir, इस ग्रुप में कोई नहीं है. ओके ओके. चलो, these are the ships basically. Of course now they are going to come to India also. India we also आपकी rivers, they are all connecting the rivers, waterways, and even on the coast. So they are planning. So I think by the time you become master, there will be a lot of रो ships also in the Indian coast. एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट में घूमने के लिए कार उठाई और चलो नहीं, बॉम्बे से सीधी कार अपने शिप के अंदर डाली और साथ ही अपनी फैमिली के साथ बैठ गए और चलो गोवा. नो, वहाँ पे कार निकाली, गोवा घूमा और वापस. सो दिस इज बेसिकली नाउ इवन इन आवर कंट्री दिस ट्रेंड इज गोइंग टू पिक अप. As you have seen in Europe, you must have gone from, like, a lot of people daily, basically they travel from England to France through the English Channel, Dover Strait. फेरीज देखी होंगी आपने. सो सारे डेली अपनी कार उठाते हैं, डाली वहाँ पे, ऑफिस में फ्रांस में काम किया और इवनिंग बैक. सो दीज आर द बेसिकली रोरो शिप्स. दे लुक लाइक दिस एंड one of the most successful type operating. Its flexibility, ability to integrate with other transport systems, and speed of operation made it extremely popular on many shipping routes, especially in Mediterranean, Europe side. A lot of these ships, of course, came and they were very useful. Now, roll-on or roll-off ship is defined basically as passenger ship with रो cargo spaces और special cargo spaces. So जैसे मैंने आपको बताया कि अदर शिप्स तो इधर इट्स पैसेंजर और कार्गो, तो इसमें उसने कंबाइन कर दिया कि यार आप कार्गो भी ले जा सकते हो, व्हीकल्स भी ले जा सकते हो, ट्रक्स भी ले जा सकते हो एंड पैसेंजर्स भी आ गए. So this was the best part. So ro-ro ship means a ship which has one or more decks, either closed or open, not normally subdivided. Normally इनकी जो decks हैं, जो car decks वगैरह होती हैं, they are basically open. It's like one full deck. There are no subdivision. बीच में bulkheads नहीं है because they have to load these vehicles, and generally running the entire length of the ship, in which goods packaged or in bulk or in on the road vehicles, including road tank vehicles, trailers, everything जो है वो आप इस पे लोड कर सकते हो. So I'll show you at the end few photographs. So one of the RoRo's most important role is as a passenger car ferry, particularly on the short sea routes. But despite its commercial success, इसमें हमेशा थोड़ी सी प्रॉब्लम भी रही है. Now there have been a disturbing accidents. Two major accidents which took place involving this ro-ro ship, the worst being sudden catastrophic capsizing of the ferry Herald of Free Enterprise in 87, and even another tragic loss of Estonia in September 94. So जब ये loss या कुछ हुआ, so naturally the governments wake up, so rule regulation जो है change होने शुरू हो जाते हैं कि भैया ये चीज़ सेफ नहीं है, अभी ऐसा बनाओ, ये अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड. सो आपने भी देखा शिप पे भी लॉट ऑफ न्यू चेकलिस्ट, न्यू गाइडेंस आनी शुरू हो जाती है. सो ओरिजिनल पब्लिकेशन हो अगर आप देखिए, इसकी अभी हर कार्गो के लिए हमारे पास डिफरेंट कोड्स हैं, इज़न्ट इट. AMDG को लिए डिफरेंट कोड, कंटेनर्स के लिए आपने देख लिया CSC कोड, बट इसके लिए भी इन शिप्स को हैंडल करने के लिए सॉर्ट ऑफ गाइडेंस देने के लिए again the code of practice for roll-on, roll-off ships, stowage and securing of vehicle. Now this also was published in 96, 2003 and then 2019. तो अब जो है इन्होंने इस एडिशन को टाइटल कर दिया गाइडेंस डॉक्यूमेंट. So instead of code of safe practice, now they call it a guidance document.
सो बेसिकली दे गाइड यू कि हाँ इसके अंदर क्या क्या रिस्क हैं, कैसे आपने इसको हैंडल करना है, कैसे आपने लोड करना है एंड कैसे सिक्योरिंग करनी है. सो ऑफ कोर्स आफ्टर लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स और इन्वेस्टिंग जब भी प्रॉब्लम आती है and they start writing this that for the future this thing should not happen. Again आपने CSM देख लिया, CSS and CSM. So this is also valid for these ships. कि जब भी आपने कार्गो सिक्योरिंग करनी है, all these things the CSM should be followed. Now during the voyage, अभी basically अगर आप guidance देखिए तो major problems क्या हैं? Which are the factors which we will take into account? Lashing should be inspected, which in car carriers में after the watch the duty officer has to go and take a round and then report to the bridge that all vehicles, everything is in good condition. And lashing should not be released before the ship is secure. Another thing, cargo should be so distributed, ship has got a ample stability. And whenever practicable, acceptable upper limit to minimize the forces. कि yes, कि GM ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, नहीं कि violent rolling हुई तो lashings गई. And next, crew should be familiar with the CSM, cargo securing manual. कि लैशिंग का बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ये नहीं कि अपनी मर्जी से कि हाँ जी करते रहो. एंड अगेन देयर शुड बी इफेक्टिव मेंटेनेंस प्रोग्राम फॉर ऑल द पोर्टेबल एंड फिक्स सिक्योरिंग डिवाइसेस वेब लैशिंग. सो हम इसमें देखेंगे कि ये बेसिकली लैशिंग अगेन जैसे आपने कंटेनर शिप में देखा, इट लुक्स वेरी इजी, हाँ यार बहुत फर्स्ट क्लास है, बट जान निकल जाती है. इजंट इट? लैशिंग मटेरियल आगे से पीछे ले जाते हुए, लैशिंग गैंग को देते हुए, ठीक है, लैशिंग पीपल तो करेंगे बट वो उनको तो वहीं पे चाहिए सब कुछ. तो सेम थिंग इन रोरो शिप्स में भी है, चाहे वेब लैशिंग है चाहे वो कैसी भी है. सो लॉट ऑफ लैशिंग मटेरियल इज रिक्वायर्ड और वो उन बंदों को हर जगह पे ही चाहिए. सो वो तो क्रू को ही देना पड़ेगा. तो देयर इज अगेन अ बिग जॉब हियर आल्सो, प्लस ऑपरेशन इज वेरी फास्ट. अब कारें लोड होनी है, कुछ भी लोड होना है तो उसको तो टाइम नहीं लगेगा. सो इसके लिए फ्यू डेफिनेशन. रोड ट्रेलर क्या है? व्हीकल एंड व्हीकल सिक्योरिंग पॉइंट. सो अगेन आपकी गाइडेंस के लिए भी आई बीन हार्पिंग ऑल द टाइम दैट जब भी हमने लैशिंग लेनी है तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट से लेनी है. ये नहीं है कि उसके बम्पर से ही अटैच कर दी. सो आपने अब नाउ यू आर नाउ ऑन द सुपरवाइजिंग साइड एज अ ड्यूटी ऑफिसर. व्हेन यू आर सुपरवाइजिंग यू हैव टू सी कि उसने लैशिंग ली कहाँ से. मैक्सिमम सिक्योरिंग लोड, अगेन अलाउएबल लोड कैपेसिटी फॉर अ डिवाइस यूज्ड टू सिक्योर अ कार्गो. एंड ट्रेन्ड पर्सन मीन्स who has received training to carry out the function that has been authorized. So आप भी trained person बन सकते हो after you have worked on these type of ships, you have passed the exam, so you know you have studied the theory also. Now what are the principal sources of danger on these ships when stowing and securing vehicles? So broadly, first of all, the unsatisfactory condition or design of vehicle presented for shipment. Insufficient number, incorrect positioning of securing points, inadequate strength, ineffective braking system. कि आपकी जो गाड़ी आपने लोड करनी वही ठीक नहीं है, वही आड़ी टेढ़ी है, या उसके ऊपर जो कंटेनर लोड किया उसके अंदर कार्गो ही ठीक नहीं है. तो नॉर्मली यू लोड द व्हीकल्स, समटाइम द व्हीकल्स आर कैरिंग कंटेनर ऑल्सो जिसके अंदर कार्गो भी है. तो कार्गो बैडली स्टोर्ड और इनएडिक्वेटली सिक्योर्ड. अनसेटिस्फैक्टरी स्टोरेज ऑफ कार्गो विद रिस्पेक्ट टू साइज. आप उसकी प्लानिंग कैसे करोगे? आपने तो दे दिया पर द कार्गो इनसाइड इज मूविंग, जो व्हीकल के ऊपर लोड किया हुआ. तो सबसे पहला प्रिंसिपल सोर्स ऑफ डेंजर तो वही आ जाता है. फेलियर टू एक्यूरेटली डिक्लेयर द वेट ऑफ कार्गो. चलो इस चीज़ का तो उन्होंने आजकल ध्यान रख लिया कि दे पास द व्हीकल ओवर द वे ब्रिज एंड दे लेट यू नो हाउ मच इज द वेट, सर्टिफिकेट आ जाता है. फ्री सरफेस इफेक्ट इन टैंक्स. कोई व्हीकल है वो टैंक कैरी कर रहा है, उसके अंदर लिक्विड है, उसका फ्री सरफेस है, वो भी naturally will create some problems. Poorly maintained ramps. अभी आपने देखा है, we'll see some more photographs कि normally the loading is by the ramps जिसके ऊपर से व्हीकल चल के आता है. अगर वही ठीक मेंटेन नहीं है can be a problem. Poorly maintained, inadequately illuminated और badly planned decks. लाइट ही नहीं है, एक्सीडेंट होने का डर तो है. डेक्स साफ ही नहीं है, वेट है, तेल है उस पर. Inadequate supervision of vehicle movement, reversing of vehicles. So यहाँ पे ये बहुत स्टैंडर्ड प्रैक्टिस रहती है. You don't allow anybody to reverse the vehicle without anybody guiding him. ये नहीं कि अंदर बैठ के आगे पीछे किया दूसरी गाड़ी डैमेज कर दी.
failure to apply brakes, failure to secure vehicles. So कार कैरियर्स या रोरो शिप्स में भी चीफ ऑफिसर ड्यूटी ऑफिसर के लिए काफ़ी काम रहता है। व्हीकल पे स्क्रैच आ गया, बिग प्रॉब्लम। नाउ यू आर कैरिंग मर्सिडीज, अगर उसके ऊपर थोड़ा सा भी स्क्रैच आया, बिग हंगामा, चीफ ऑफिसर हैज टू आंसर। तो इसके लिए भी आपके हेल्प के लिए दे आर लॉट ऑफ श्योर पीपल जो चेक करते हैं, रिपोर्ट देते हैं, बट सेम टाइम हमें भी देखना इनसफिशिएंट इनकरेक्टली अप्लाइड लैशिंग, फ्री प्ले इन द सस्पेंशन ऑफ व्हीकल्स, कि आपने नज़दीक उनमें गैप नहीं रखा, स्टोरेज के टाइम में ध्यान नहीं दिया, तो थोड़ा सा जहाज रोलिंग हुई तो एक व्हीकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत तो सस्पेंशन उनमें रहती है। व्हीकल ऐसा तो है नहीं कि लाइक अ बॉक्स तो होता नहीं। फेलियर टू कंप्लाई विद द करेक्ट डिक्लेरेशन, प्ले कार्डिंग, लेबलिंग, स्टोरेज, सेग्रीगेशन रिक्वायरमेंट्स फॉर व्हीकल्स कैरिंग डेंजरस गुड्स, कि उसके अंदर आपने पेट्रोल, तेल, क्या पता कंटेनर में क्या डाला है जो ट्रक के ऊपर है, वो डिक्लेयर नहीं किया, तब भी प्रॉब्लम। So lot of time the ships catch fire. Inadequate securing arrangements for special vehicles. Now comes the protection of personnel on ramps and vehicle decks. Now as a duty officer, so आपके पास ये सारे points होंगे if you have, चाहे आपने काम नहीं भी किया, but basic चीज तो आपको पता है कि यार vehicles को store कैसे करना है, उनकी plan, and second protection of personnel सबसे important है on the ramps, because वो ramp ही आपके ऐसा गैंगवे यूज होते हैं, बंदे भी चले होते हैं, वो वहीं से लोडिंग भी हो रही है। एंड यू नो कार्स तो आस्ते आस्ते जो चलेंगी नहीं, दे कम विद फुल स्पीड। मूवमेंट, स्टोरेज एंड सिक्योरिंग ऑफ व्हीकल्स ऑन व्हीकल डेक्स एंड रैम्प शुड बी सुपरवाइज्ड बाय अ पर्सन। तो ड्यूटी ऑफिसर या कोई ना कोई, चाहे बोसन जो भी है, वो वहाँ पे होना चाहिए जो सबको गाइड करे। ये नहीं कि उसको छोड़ दिया और बंदे अंदर से शिप से बाहर भी जा रहे हैं और आगे से गाड़ी भी आ रही है। Before being accepted for shipment, every road vehicle should be inspected. So ये तो कॉमन है, हर कार को हम चेक करेंगे randomly, plus sure people, teleman will definitely help you. बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो teleman जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी शिप की भी है कि हाँ भाई आपने चेक किया, आपने भी तो राउंड लगाए, आप भी तो लोडिंग कर रहे थे। So all cargo to be documented, loaded as per the requirements. So सारा कार्गो जो है उसके पेपर्स भी होने चाहिए। Cargo loading doors, flood barriers, ships ramps, car platforms, retractable car decks. अब इसमें क्या होता है कार कैरियर्स में, कहीं कहीं जो है डेक्स, इंटरमीडिएट डेक्स जो हैं वो आप उसकी हाइट एडजस्ट भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जस्ट टू फिट द, कोई कार या कोई ट्रक उसकी हाइट जो है कम ज़्यादा होगी तो इंटरमीडिएट डेक्स जो हैं वो एडजस्ट। अदरवाइज यू हैव फिक्स डेक्स ऑल्सो एंड रिट्रैक्टेबल डेक्स जो हाइड्रोलिकली ऊपर नीचे होती, तो उसके लिए अलग से स्पेशल प्रिकॉशन। Safe systems of work should be provided in order to ensure drivers do not move vehicles until directed to do so by the trained person. अब वहाँ पे हर गाड़ी में अलग अलग ड्राइवर आ रहे हैं और सब अगर अपनी मर्जी से चलाने लगे तो हो गया काम। तो इसके लिए वहाँ पे भी उनको भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस रहती हैं कि नहीं, जो भी इस वक्त उसको हैंडल कर रहा है, जो भी सुपरवाइजर है, जो भी डायरेक्टर है, उस डायरेक्टिंग द व्हीकल्स, सो दे हैव टू लिसन टू हिम। पैसेंजर्स ड्राइवर नॉट परमिटेड टू रिमेन ऑन द व्हीकल डेक्स। सो ये एज अ ड्यूटी ऑफिसर आपके पास बन जाती है कि नोटिस, प्लीज डिस्प्ले द नोटिस कि वहाँ पे कि व्हीकल डेक्स पे जहाँ पे कारें लोड अनलोड हो रही हैं, नोबडी इज अलाउड टू वॉक देयर। तो उनके लिए सेपरेट पैसेज है। तो ये नोटिस आपका काम आ जाता है कि यस यू आर गाइडिंग द पीपल दैट यू आर नॉट अलाउड टू वॉक। समटाइम पैसेंजर्स आल्सो मे बी वॉचिंग, चलो यार देख के आते हैं कैसे लोडिंग हो रही। Ramps which are used for vehicles not also to be, they are also basically used simultaneously for pedestrians. So उसके लिए normally sometimes they say that you make a separate walkway, एक मैन रोप लगा के सेपरेट पैसेज रखिए जहाँ से उस रैम्प पे अगर बंदों ने चलना है तो वो उसी पैसेज से जाएं विद द मैन रोप्स एंड ऑल, नॉट दैट आराम से चले हुए और बीच में आगे से गाड़ी आ गई, एक्सीडेंट हुआ तो फिर ड्यूटी ऑफिसर को पूछो, एक्सप्लेनेशन दो और क्लेम पे करते रहो। हैंड सिग्नल्स, एनीथिंग विच इज यूज्ड इट शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ये नहीं कि आप कुछ और सिग्नल कर रहे हो एंड जो गाड़ी वाला वो कुछ और ही समझ रहे हैं। तो एम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस सिग्नलिंग होनी चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज ऑल
इंटरनेशनल लेवल के जो भी साइन सिग्नल हैं, व्हेन यू आर सेइंग कम और व्हेन यू आर सेइंग स्टॉप, दे शुड बी फॉलोड. देयर शुड बी एटलीस्ट वन लाइफ बॉय. अभी आप देख लीजिए, जैसे गैंगवे है ऐसे ही आपके इसके शिप्स के रैंप्स होते हैं. तो देयर आर चांसेस पीपल कैन फॉल ऑल्सो. तो वहाँ पे आपने अगेन लाइफ बॉय, लाइफ लाइन सारी होनी चाहिए इफ समबडी फॉल्स. अभी रैंप जो है जेटी पे हैं, उसके नीचे भी रबर मैट्स रखते हैं कई बार, बिकॉज शिप अगर थोड़ा सर्च करेगा तो आपका जो रैंप है जेटी पे हो तो जेटी को तोड़ता जाएगा. तो इट अगेन डिपेंड्स किस जगह आप जा रहे हो, किस किस टाइप के व्हीकल्स आप हैंडल कर रहे हो, किस टाइप के शिप्स हैंडल कर रहे हो. तो ये सारी सेफ्टी प्रिकॉशन में आ जाती है, प्रोटेक्शन और पर्सनल में आ जाती है. लाइफ बॉय जरूर होना चाहिए. परमानेंटली मार्क्ड वॉकवे शुड बी प्रोवाइडेड एंड इट शुड बी वेल इल्यूमिनेटेड. जो भी चलने का भी ये तो है नहीं कि दिन में ही लोडिंग डिस्चार्जिंग होगी, रात में भी ये नहीं कि चलते चलते बंदा पानी में ही गया. व्हीकल शुड नॉट बी पार्क्ड इन सच अ वे टू ऑब्स्ट्रक्ट द वॉकवेज. तो ऑफ कोर्स आपके पास कार्गो प्लान है, नॉर्मली यहाँ पे भी कंपनीज ऑफ कोर्स दे हैव द फुल आपके उनका कार डेक्स की प्लान उनके पास होती है. दे मेक द प्लान एंड दे सेंड इट टू यू. यू कैन सी इट ऑन योर कंप्यूटर, यहाँ पे कौन सी व्हीकल्स कहाँ पे लोड हो रही हैं. सो इन केस अगर आपको लगे कहीं ब्लॉक हो रहा है, एनी इमरजेंसी एस्केप ब्लॉक हो रहा है, लाइफ सेविंग फायर फाइटिंग अप्लायंसेस ब्लॉक हो रहे हैं, यू कैन चेंज द प्लान. सो टेल चीफ ऑफिसर सर यहाँ पे अगर लोड करेंगे तो रास्ता रुक जाएगा. Appropriate instruction should be made to inform persons on the vehicle decks of dangers moving. So ये जो protection of personal, because lot of accidents have taken place, so that's why it has come a very strong guideline that crew members or anybody whosoever is working, they should be wearing proper PPE, high vests जो दूर से ही दिखे. And again shore workers also should exercise great care before the accident takes place. Another, to reduce accumulation of fumes. अब गाड़ियां चलेंगी तो आपकी डेक के अंदर फ्यूम भी इकट्ठे हो सकते हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे लास्ट में कि यस व्हाई इट इज नेसेसरी टू मॉनिटर द एटमॉस्फेयर इन द रोरो स्पेसिस. वैसे तो उसका भी थोड़ी सी आपको टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए कि ये फ्यूम जो हैं ये क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट डैमेज दे कैन डू टू द ह्यूमन बींग्स. पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, एंड फिर फ्यूम्स तो होंगे जब गाड़ियां चलेंगी. इतनी सारी गाड़ियां लोडिंग 1000 और 1500 व्हीकल्स, so when they are running and it's a closed deck, isn't it? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. स्मोकिंग डेफिनेटली no naked lights, no smoking, nothing on the ramps or not near the vehicles, because ships have caught fire, people were smoking happily and वहाँ पे पेट्रोल लीक कर रहा था. Retractable car decks, lifting appliances should be securely locked. एंड ये नहीं कि उसके ऊपर बंदे खड़े हैं तो आप अपनी डेस्क को ऊपर नीचे करना शुरू कर दो. Now precautions regarding vehicle decks and ramps, vehicle deck, ships, ramps, lifting appliances and securing arrangements. एक of course जिन्होंने आप none of you have worked, the guys who have worked, there is again a big operation of handling these ramps. So chief officer himself comes. So उसकी भी again there are a lot of precautions. So very simple. जैसे आपने गैंगवे वगैरह हैंडल किया, चलो गैंगवे थोड़ा छोटा स्मॉल स्केल पे होता है. these ships, these ramps are on a little bigger scale, हैवी होते हैं. एंड उनकी जो सिक्योरिंग है, अभी आप कंपेयर योर गैंगवे, क्या मैंने गैंगवे को अगर उसकी लैशिंग निकालनी है तो हम कैसे करते? एनीबडी, क्या प्रिकॉशन लेते हो आप गैंगवे की लैशिंग निकालने से पहले? ब्रॉडली सिंपल है. सबसे पहला स्टेप क्या है कि अच्छा भी चलो नाउ द शिप इज अराइविंग पोर्ट एंड गैंगवे को रेडी करना है. सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट की लोअरिंग एंड ऑल दैट. शिप में तो हम सिक्योर करके रखते हैं. तो सबसे पहले जब आप जाओगे तो आप उसके जो भी क्लीट्स हैं वो इमीडिएटली खोलनी शुरू कर देते हो, क्या करते हैं? एनीबडी? सर लैशिंग निकालते हैं, उसके बाद चेक करते हैं सर नीचे, उसको ट्राई आउट कर लेते हैं एक बार. देखिए बच्चे, आप लैशिंग जैसे अगर खोलोगे, लैशिंग खोलने से पहले एक सबसे बड़ा पॉइंट आपको बताता हूँ कि यू मस्ट मेक श्योर कि जो गैंगवे का वेट है वो वायर्स के ऊपर आए. अगर आपकी बाई चांस वायर स्लैक है, जो लिफ्ट गैंगवे की जो वायर रहती है ड्रम के ऊपर मोटर में रहती है,
अगर बाई चांस वो वायर से लेके जैसे आपने लैशिंग खोली तो गैंगवे वैसे ही झटका मारेगा बाहर, इज़न्ट इट? तो वैसे तो गैंगवे में होता नहीं, बट इन रैंप्स वगैरह में भी क्या है कि नॉर्मली अगर आप देखिए बोसन को भी, तो हम वायर पे वेट नहीं रखते, हम जब गैंगवे को सिक्योर करते हैं तो उसकी क्लीट्स पे ले लेते हैं, जो भी क्लीट्स है उस पे वेट ले लेते हैं। तो उससे पहले हमने देखना है कि गैंगवे का जो वेट है, वायर बहुत ज़्यादा स्लैग तो नहीं है कहीं। अगर स्लैग का तो थोड़ा सा उस पे ऊपर थोड़ा सा उसको टाइट करके फिर भी ओपन द क्लीट्स, फिर क्लीट खोलेंगे तो गैंगवे कहीं नहीं जाएगा। अब स्लोली स्लोली आप वायर को रिलीज कीजिए। तो यहाँ पे भी ये जो शिप्स के जो रैंप्स होते हैं इनमें भी है कि क्लीट खोलने से पहले, ये नहीं कि क्लीट खोली और वो रैंप जो है थोड़ा सा झटका मारा और वायर भी टूटी और रैंप गया नीचे। सेम थिंग कैन हैपन विद गैंगवे। तो जर्किंग नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए भी मेक श्योर दैट आप जब कल ऑफिसर बन के जाओगे, व्हेन यू आर वॉचिंग, सो यू हैव टू सी दिस, जो बंदा काम कर रहा है खोल रहा है, तो आपने नज़र रखनी कि यार कहीं इसकी जो वायर हो स्लैग तो नहीं है, प्रॉपरली सिक्योर्ड है, ताकि जैसे क्लीट खोलूं, बिकॉज इमीडिएटली द वेट इज गोइंग टू कम ऑन द वायर, कि वो ठीक है कि नहीं है। तो इसके रैंप्स में भी देयर आर लॉट ऑफ प्रिकॉशंस विच यू हैव टू डू। फिर वहाँ पे लॉट ऑफ इंडिकेटर्स आर देयर, इलेक्ट्रॉनिक आपका डिस्प्ले है, सारी चीज़ें हैं, प्लस यू कीप लॉट ऑफ पीपल अलॉन्ग विद यू जो उसको देखते रहें जब आपने इन रैंप्स को हैंडल करना है। तो these are the precautions. All lifting appliances should be properly tested, certified. जैसे आपको अगेन बैक टू योर गैंगवे कंपेयर करें तो उसकी जो हम वायर लगाते हैं वहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि व्हेन चेंज्ड, एंड अगर हो तो आपके पास सर्टिफिकेट का नंबर है तो उसका भी रेफरेंस दे देते हैं कि भाई ये वायर है, कब चेंज की थी। तो यहाँ पे भी ये रैंप जो है इसमें भी एवरीथिंग हैज़ टू बी टेस्टेड, सारी वायर्स जो भी आप चेंज करते हो सब कुछ जो है वो सारा टेस्ट होना चाहिए। एंड सूटेबल स्लिप रेजिस्टेंट सरफेस होना चाहिए, एंटी स्किड सरफेस होना चाहिए, एडिक्वेट परमानेंट लाइटिंग शुड बी प्रोवाइडेड, doors leading to vehicle deck should have clear signs prohibiting unauthorized entry of vehicle decks and warning of the dangers. तो ये जैसे हमने अपने गैंगवे पे भी लगाया नो स्मोकिंग, नो दिस थिंग, नो अनऑथराइज्ड पर्सन, सो ये वहाँ पे भी आपके जो रैंप्स पे भी हैं, बिकॉज ये एक बड़ा ऑपरेशन है। दिस रैंप्स आर वेरी वेरी हैवी, थोड़ी सी वायर इधर से उधर हुई तो ख़त्म, वेरी डिफिकल्ट। और इसकी वायर को रीव करना भी इज़ अ टफ जॉब। Adequate supply of equipment dealing with emergency should be readily available. अब जैसे व्हीकल लोड होने हैं तो उसमें से हो सकता है ऑयल ग्रीस कुछ निकले, तो जैसे हमारा सोपैप लॉकर है, ऐसे वहाँ पे अगेन मटेरियल जो है एब्सॉर्बेंट मटेरियल सब रेडी होना चाहिए। किसी व्हीकल में से कभी भी तेल या पानी निकल सकता है, isn't it? Grease and all that, it will make the surface slippery. Electrical equipment चेक करना है कहीं स्पार्किंग तो नहीं हो रही। वाई? बिकॉज वी आर हैंडलिंग व्हीकल्स, और उनमें से तेल कभी भी ड्रॉप कर लीक कर सकता है, कुछ भी लीक कर सकता है, चांसेस ऑफ फायर। सो ये फायर प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी होती हैं रोरो शिप्स पे ड्यूरिंग लोडिंग डिस्चार्जिंग ऑपरेशंस। रिट्रैक्टेबल कार डेक्स, लिफ्टिंग अप्लायंसेस, अगेन वार्निंग नोटिसेस, एंड जब इन डेक्स को उठाना है, देयर इज बीन अ केसेस, वन ऑफ द गाय वाज अगेन टेलिंग इन द सेम क्लास कि सर वो व्हीकल डेक को नीचे से उठा दिया विदाउट रियलाइजिंग ऊपर क्लियरेंस कितनी है, और उसके ऊपर कार्स थी, वो कार सारी ऊपर वाली डेक में जाके डैमेज कर दी। तो ऐसा नहीं करना हमेशा। whenever the whosoever is operating the this thing, he should have a clear view, चाहे रैंप ऑपरेट कर रहे हैं चाहे डेक्स ऑपरेट कर रहे हैं, एंड बेस्ट इज टू हैव another man stand by. No person should be lifted by ramps, retractable car decks. फन के लिए अरे चलो ठीक है यार मैं खड़ा हूँ चलो उठा दो, मशीन है बच्चे, नेवर प्ले विद दिस। इसलिए इवन गैंगवे पे भी whenever you are lifting up the gangway, nobody should be on the gangway. You never know कब वायर अगर बाई चांस टूट गई तो गया वो पानी में। हमेशा एज अ ऑफिसर यू हैव टू थिंक ऑफ द वर्स्ट। सेफ्टी आपके मन में हमेशा रहनी चाहिए। नो, बाकी किसी को कुछ नहीं होने वाला, सब आपको एडवाइस करेंगे सर कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, और कुछ हो गया सब आराम से अंदर चले जाएंगे, आप आंसर करते रहोगे फुल वॉइस। जनरल रिकमेंडेशंस, cargo spaces where vehicle trailers to be stored should be dry, clean and free of grease and oil. Vehicles trailer should be provided with adequate, clearly marked securing points or equivalent means of sufficient strength to which lashings may be applied. So normally you have a
आइज और यहाँ पे परमानेंट आइज बनी होती है जहाँ जहाँ व्हीकल्स ने आना है, वो प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। एंड जहाँ पे उसकी आइज बनी है वहीं पे लैशिंग लेनी है, तो स्पेसिफिक पॉइंट्स है, ये नहीं किसी पिलर से बांध दिया किसी और से बांध दिया। सो दिस इज व्हाट ड्यूरिंग योर सुपरविजन, चाहे लैशिंग क्रू करे या शोर पीपल करे, you have to see that it is done properly. Now vehicles which are not provided with rubber wheels or track with friction increasing lower surfaces, again dunnage. When stored in position, brakes, व्हीकल को जब प्रॉपर उसको लगा दिया, पोजीशन में आ गई, securing, and उसकी brakes should be kept on, and basically you put it in one gear so that vehicle doesn't move. Vehicles, trailers carried as part of cargo should be stored close to the ship side. Of course, that is again on the cargo plan. All the vehicles तो ship side पे नहीं आएंगे. To prevent any lateral shifting, trailers not provided with adequate securing points, such cargo should be stored close to the ship side. तो ठीक है. Wheels of the vehicle should be blocked. Sometimes there is a system. I have a photographs here. On the ships we have the system of putting the chokes. वो स्टील के प्लेटफॉर्म टाइप रहते हैं, they just raise it and आपकी जो wheels हैं they get blocked for the even heavy vehicles or sometimes the cars. Lashing should not be attached to the lamp bracket, side guards. व्हीकल में हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, आपने देखना लैशिंग वहीं से ली जानी चाहिए. I think I have some photographs here. Yes, now this is important. ये जो आपकी व्हीकल की लैशिंग है वो कैसे होती है. ये देखिए, दिस इज द स्ट्रॉन्ग पॉइंट. ये बेसिकली होता है जहाँ से आपने लैशिंग लेनी है, चाहे ये टोइंग के लिए है. दिस इज द वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. एंड दीज आर द क्लैस्पर्स, बेसिकली वेब लैशिंग्स. इनकी भी सेफ वर्किंग लोड होता है, दे आर ऑल टेस्टेड वंस. तो ये सारा का सारा मटेरियल आपको एज अ शिप स्क्रू दे हैव टू bring it to respective places. So before loading starts, so all this lashing material should be readily available. So काफी बड़ा काम हो जाता है. So similarly forward आपके देखिए points हैं, these eyes are welded here, जिसके ऊपर आपने lashing लेनी. Now sometime if you want to secure the wheels, it can be secured also like this. Wheels को jam करने के लिए some ships they have a system like this also. Now cargo securing is basically dependent on the securing means, weight, type of vehicle and where it is stored. Means of transport must be equipped for lashing vehicles correctly. So ये lashings की जो है कि क्या क्या lashing material है, basically these web lashings. Normally nowadays we don't use much of the wires. तो vehicles को store करने के लिए these web lashings, and they should be certified, tested, and we should know up to how much load we can use these lashings. They must be used with great care, taken to ensure the same number of lashing belts are used in both front and rear. So ये नहीं है lashing equal weight होना चाहिए, 2 forward 2 aft enough, but both of them should be equally tight. Now cargo securing examples. Use lashing belts. In maritime transport, lashing belt should be tight but not highly pre-stressed. जो हमने कंटेनर्स में देखा है कि यस कि लैशिंग जो रॉड्स हैं हम उसको टाइट ही करते जाते हैं. नो, जस्ट इनफ टाइट, एक्स्ट्रा नहीं देना, कुछ ना कुछ पे टूटेगा. On inclined surfaces and in case of stowage athwartship, wheel chokes are additionally used. अगर आप व्हीकल को athwartship लोड कर रहे हो, naturally we know the rolling angles are more. So for that purpose, we will definitely use the choking of the wheels in case sometimes space is such that we may have to load the vehicle athwartship. थोड़ी सी extra precaution in case if we are loading athwartship. तो ये तो ठीक है. Cargo securing, loading. Now before accepting the vehicles, now it is again essential. वही आ गया कार्गो के लिए. So vehicles के लिए थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है, because sometimes you load expensive cars, doors, windows, tank fillers are securely closed and tires are pumped to sufficient pressure. ये भी नहीं कि टायर में हवा नहीं है और आपने लोड कर दिया तब भी व्हीकल डैमेज होगी. एक्सटर्नल डैमेज रिकॉर्डेड नॉर्मली. वैसे तो श्योर पीपल जो टेली वाले हैं
they also keep these things on. वो भी अपना एक रिकॉर्ड बना के बाद में चीफ ऑफिसर को देंगे whatever the vehicles have seen. But normally हमारी टेंडेंसी होती है we don't load the vehicle which has got damage unless there is specific instructions, otherwise no way. Installed or dismantled accessories, radio, external mirrors, spare parts complete. इसका कार्गो क्लेम बहुत ज़्यादा आता है व्हीकल्स कार कैरियर्स पे. Lot of people will take out this, गाड़ी तो खुली है, अंदर से कुछ निकाल लिया. तो ये सारी चीज़ का भी पिलफ्रेज का भी ध्यान रखना है कि ठीक है व्हीकल पार्क हुई, जो भी है ड्राइवर जो भी उसको पार्क कर रहा है, दे कम आउट एम्प्टी हैंडेड, यानी कि अंदर से कुछ साथ ही लेके आ गए. फ्यूल टैंक्स बेयर मिनिमम क्वांटिटी, बैटरी फंक्शनल एंड इंस्टॉल्ड. उसकी बैटरी को कुछ नहीं करना कि हाँ जी पता नहीं बैटरी को, समटाइम पीपल से डिस्कनेक्ट कनेक्शन. नो, कनेक्शन डिस्कनेक्शन के टाइम में अगेन स्पार्किंग होती है. सो नो, प्लीज डू नॉट टच द कार और किसी की बैटरी को भी. लेट इट बी इन अ इंस्टॉल्ड पोजीशन. During loading unloading, care should be taken to ensure angle of your ramps should not exceed 12 degree with the horizontal. Otherwise नीचे की जो कार्स टच की कार भी डैमेज हो जाएगी. सो ये रैम्प्स की जो प्रिकॉशंस हैं उसकी लोअरिंग लिफ्टिंग ऑफ द रैम्प्स, एंगल एट विच इट शुड बी देयर. समटाइम यू पुट अगेन द मैट्स सो दैट द जेटी इज नॉट डैमेज ड्यू टू द सर्जिंग ऑफ द शिप. ये भी एक प्रिकॉशन है. Experienced drivers are used, handling personal wear, special working clothes, and again right hand left hand driving की जो vehicles हैं उनको उसी तरह से करना है so that people can enter and get out. Now following is a general criteria कि आपने load this cargo. Admissible deck ramp loads must not exceed. Storage spaces must be protected from direct ingress of sea water. That's why ये जो आपके डोर्स हैं, बाउ डोर्स या स्टर्न डोर्स, उनकी जो क्लोजिंग के लिए द रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट नाउ, बिकॉज दैट फेरी जो कैप्साइज की थी दैट वाज, उसका डोर वाज नॉट प्रॉपर्ली क्लोज्ड एंड शी कैप्साइज्ड विद 6 inches ऑफ वाटर ऑन द कार डेक. स्टोरेज स्पेसेस मस्ट बी फ्री फ्रॉम ग्रीस, ऑयल, एनी अदर फ्रिक्शन reducing substances. And storage spaces again in which the the storage spaces in which the deck surfaces may permanently be at high temperature. Sometime yes, आपके कार वो कुछ भी हो सकता है, फ्यूल टैंक्स हैं या कोई और टैंक्स हैं, नीचे वाली डेक्स हैं, तो उसका भी ध्यान रखना है कि यस उसके व्हील्स जो हैं they should not get affected by high temperature, they should not suffer damage. Ensure enough spacing between the individual vehicles. Normally they have recommended, वहाँ पे लिखा होता है, there are marked, especially on the pure car carriers, everything is well marked that इतनी space आपको बीच में 10 centimeter, 15 centimeter due to the suspension. And care again must be taken to ensure spacing in front is no less than 30 centimeter. एक feet की आपकी space होनी चाहिए between the vehicles. तो ये तो आपकी थी प्रिकॉशन. अगेन यहाँ पे स्पेस को प्रेपरेशन के लिए ज़्यादा कोई वो नहीं है, व्हाट वी कॉल ज़्यादा प्रिकॉशंस नहीं है. ओनली क्लीनलीनेस इज रिक्वायर्ड. यू हैव टू क्लीन, नो ऑयल, नो वाटर, नो स्लिपरी थिंग्स, एंड कीप द इक्विपमेंट रेडी फॉर इन केस देयर इज अ ऑयल और एनी लीकेज टेक्स प्लेस, you should be able to immediately clean up that. So rest of the things are very easy as compared to what we saw in the reefer goods. Bow doors, and they are basically two types. One is visor doors which are opening by rotating upward and outward, and दूसरे होते हैं आपके side opening type. Now you have seen the side opening type. Lot of container ships you pick up pilot also, so there also you have the side opening doors. So ro-ro ships में भी उसी type के doors हैं by which the vehicles are loaded, and then closing and making these doors watertight. That is very important. Side shell bow stern doors are to be fitted with adequate means of securing and supporting. And where packing is required, packing material should be of comparatively soft type. So as a duty officer, as a chief officer, हमारी ये responsibility बन जाती है that these doors when they close, they make a watertight connection. No water should be able to come.
securing devices to be simple to operate. Now इसका भी आपका मैनुअल रहता है, ऑपरेशन मैनुअल फॉर हर डोर, रैंप्स के लिए, साइड डोर्स, बाउ डोर्स के लिए there is a operating manual, and please go through that. Now, again, securing devices to be equipped with mechanical locking arrangement also, and opening and closing as well as securing are to be interlocked in such a way that they can only operate in proper sequence. So ये सारी precaution आज इसीलिए आई है after the accidents, कि जब भी हम बाउ डोर्स को खोलें या बंद करें उसका प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हो, जिसके लिए उन्होंने आपको ऑपरेटिंग मैनुअल दिया हो. सो वी हैव टू सी दैट क्या क्या हमने पहले खोलना है. ऑफ कोर्स प्रैक्टिकली इट्स नॉट डिफिकल्ट, आप एक बार करोगे सो यू कम टू नो, बट हमें टेंडेंसी हो जाती है कि अरे यार आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस शिप्स फॉर सो मेनी ईयर्स, इसके लिए अच्छा ठीक है, फिर आप मैनुअल छोड़ देते हो, अपनी सीमैनशिप लगानी शुरू कर देते. So where hydraulic securing devices are applied, system to be mechanically lockable in closed position. This means in the event of loss of hydraulic fluid, कि by chance आपकी hydraulic line burst हुई, तो door should be capable of closing. ठीक है, ओपन नहीं होगा जब तक आप उसको रिपेयर नहीं करते, बट डोर शुड भी, ये नहीं कि हाइड्रोलिक लाइन बर्स्ट हुई तो मैं डोर को बंद ही नहीं कर सकता. सेपरेट इंडिकेटर लाइट्स, ऑडिबल अलार्म जो मैं आपको बता रहा था, फॉर इवन रैम्प्स एंड फॉर डोर्स. Even I think other ships also, whenever we open these watertight doors, there is alarm on the bridge, visual, audible दोनों. तो यहाँ पे भी है कि yes, indoors के लिए you have the alarm in the engine room and even on bridge that when these doors are open. An indication panel is to be provided with lamp test function. ये हर चीज़ के लिए, even ramps के लिए भी है, side doors, bow doors के लिए, सब के लिए है कि आपका ये जो लैम्प टेस्ट है कि यस, ताकि विजुअल अलार्म आपके पास आए, यू कैन इमीडिएटली गो एंड सी व्हाट इज रॉन्ग. फॉर पैसेंजर शिप्स, वाटर लीकेज डिटेक्शन सिस्टम, सिंपल, लाइक यू हैव बिल्जेस, सो अगर बाई चांस बाउ डोर से कोई लीकेज होती है, बिल्ज अलार्म. ऑडिबल एंड टेलीविजन सर्विलेंस टू बी अरेंज, स्पेशली पैसेंजर शिप्स पे दे आर वेरी स्ट्रिक्ट नाउ, कि बाई चांस डोर्स हैं, आपका आउटर रैंप है, उसके अंदर इनर डोर भी है, that is also like a acts like a collision bulkhead, bow doors, forward doors के लिए. and again उसमें बिल्ड सिस्टम होना चाहिए एंड अलार्म होना चाहिए, दोनों इंडिकेटर, विजुअल, ऑडिबल, सब इन द ब्रिज एंड इन द इंजन कंट्रोल रूम. कार्गो शिप्स के लिए वाटर लीकेज डिटेक्शन सिस्टम इज ऑडिबल टू बी अरेंज टू प्रोवाइड इंडिकेशन टू द नेविगेशन ब्रिज. ऑपरेटिंग मेंटेनेंस मैनुअल फॉर दिस डोर्स टू बी प्रोवाइडेड एंड मस्ट बी रेड एंड मस्ट बी फॉलोड. अब आपका आ गया नीड टू मॉनिटर दिस एटमॉस्फेयर इन कार्गो स्पेसिस. ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन आपको आ जाता है कि यस, व्हाई देयर इज अ नीड एंड व्हाट ऑल मीन्स आर देयर ऑन द शिप टू मॉनिटर एंड टू हैंडल दिस एटमॉस्फेयर इन द रोरो स्पेसिस. सो एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम मोटर व्हीकल्स कंटेन हैजरस सब्सटेंसेस. सो जस्ट फॉर योर नॉलेज, कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम द पेट्रोल इंजन्स एंड नाइट्रिक ऑक्साइड and nitrogen dioxide from the diesel engines are released in the cargo spaces. तो अभी आप हर टाइप की गाड़ी लोड कर रहे हो, some are driven by petrol, some are driven by diesel. So पेट्रोल से तो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी और डीजल से नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड which are both harmful. So these hazardous substances can affect people in different way. Certain substances have a tangible, immediate effect. Others show injury effect after a person has been exposed to them for a long time. अब अगर आप 6 आवर्स की वॉच है, वहीं पे खड़े हो एंड वहाँ का एटमॉस्फेयर अगर आप कुछ नहीं कर रहे, so it can affect anybody. Now, carbon monoxide is a colorless, odorless gas, which to a greater extent inhibits the ability of the blood to absorb and transport oxygen. कार्बन मोनोऑक्साइड ये डेंजर करती है आप, तो इसके लिए इनहेलेशन ऑफ गैस कैन कॉज हेडेक, डिजीनेस, नॉशिया. तो आप खड़े खड़े आप बोलोगे हेडेक हो रही है, क्यों हो रही है? बिकॉज यू आर इनहेलिंग द फ्यूम्स. तो सबको होगी, आपको नहीं है, जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं. तो इसके लिए इन स्पेसिस पे ये एटमॉस्फेयर मॉनिटर करना कि यस, इफ देयर इज अ गैसेस आर गोइंग टू बी देयर, तो हमारे पास सिस्टम है. कौन सा सिस्टम है? वेंटिलेशन सिस्टम. So nitric oxide and nitrogen dioxide are compounds of nitrogen and oxygen. Together we call them NOx.
Now, nitric oxide itself is not of great concern as regards health effects. However, a proportion of this will combine with oxygen to form nitric dioxide, which is of concern to the human health. इसलिए इसको what we call basically is a brown gas which has a stinging, suffocating odor, and it exerts a detrimental effect on the human respiratory system. So इसके लिए इसके हमारे पास simple system ventilation. वेंटिलेशन क्या है, रेक्टिफिकेशन क्या है, मेजर्स क्या है हमारे पास टू मिनिमाइज दिस हेल्थ हैजर्ड्स, रिडक्शन इन एग्जॉस्ट गैस एमिशंस. तो हमारे पास 2-3 तरीके हैं. एक तो या तो हम ये जो एग्जॉस्ट गैस के एमिशन उसको कम करें. कम कैसे करेंगे, बेयर मिनिमम इंजन चलाओ. जैसे ही गाड़ी लोड हो गई इंजन बंद, नॉट दैट कि पार्किंग के बाद भी इंजन इज ऑन, तो और भी इमिशन होगा. Second, provision of an adequate ventilation system. And third, prevention of exposure to the gases. कि अगर जहाँ पे gases हैं तो वहाँ पे कम से कम टाइम स्पेंड कीजिए. That is what the prevention of exposure to these gases. तो 3 मेथड हैं आपके पास कि ये तीनों प्रिकॉशंस अगर हम लें, कम से कम एग्जॉस्ट इमिशन करें, एडिक्वेट वेंटिलेशन करें, एंड उस गैसेस उस एटमॉस्फेयर में कम से कम टाइम रहे. To ensure the effectiveness of above recommended measures, so it is essential that the atmosphere in the RoRo vessel is monitored. The ventilation system for RoRo cargo spaces generally operate according to the principle of dilution ventilation. तो आपने देखा है कि ventilation में क्या है, where the supply by air flow to the area is insufficient for exhaust gases to mix thoroughly. So या तो हम उसको dilute करें या हम उसको exhaust करें. So there are main 2 types of dilution ventilation: exhaust air ventilation and supply. So exhaust में क्या होता है, fans remove the air from the cargo space and then replaced by outside fresh air entering through your open ramps, doors, other openings. तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा सिस्टम है. प्लस ये क्या करेगा, एक किस्म का एक वैक्यूम भी क्रिएट करेगा, लो प्रेशर क्रिएट करेगा एग्जॉस्ट जब चलाएंगे. तो उससे जो गैसेज हैं आपकी स्पेसिस में, दे हैव नो टेंडेंसी टू गो टू एनी अदर प्लेसेस. अब जो हमारा सप्लाई सिस्टम है, अगर हम उसको वेंटिलेशन को सप्लाई में डालते हैं तो आपका हाई प्रेशर क्रिएट होगा अंदर. हाई प्रेशर होगा तो ये जो गैसेज हैं, एग्जॉस्ट गैसेज हैं, ये वहाँ से निकल के कहीं ना कहीं और स्पेसिस में भी जाने की कोशिश करेंगी. एग्जॉस्ट वेंटिलेशन इज एम्प्लॉयड व्हेन सब एटमॉस्फेरिक pressure is required in the RoRo spaces, and subatmospheric pressure prevents pollution from spreading to adjacent areas. तो इसका एग्जॉस्ट गैस का ये फायदा है. सो एग्जॉस्ट वेंटिलेशन वी कीप इट ऑन कि चलो यार उसको सप्लाई में डालने की बजाय एग्जॉस्ट में रखिए, तो आपकी सारी गैसेज जो हैं रिमूव भी होती रहती हैं एंड यू आर नॉट एक्सपोज टू दिस गैसेज ऑल्सो. सो दिस इज वाई ये 2-3 चीज़ें ये कैसे इफेक्ट करती हैं एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू. सप्लाई का मैंने बता दिया आपको, जस्ट द अपोजिट. सप्लाई वेंटिलेशन यूजुअली क्रिएट्स प्रेशराइजेशन ऑफ द RoRo स्पेस, उसको हाई प्रेशर क्रिएट करेंगी. एंड insufficient mixing of the supply air does not occur, contaminants may remain on deck in question. So excessive pressure से वो गैसेज जो हैं कहीं और भी स्पेसिस में जा सकती हैं. So these are the few images you see. This is how your basically car decks look like. So there are right from bottom to up. So these cars are loaded in these type of ships, and these are your ramps. Now you can imagine how many wires are here. There's a very big system. इसको lift करना, इसको operate करना, इसको handle करना, it's again a big job. So it is a, जैसे मैंने आपको कहा gangway, but वो एक बहुत small level पे है. ये जो आपका ramps हैं, these are on little bigger level. Now you see your car decks. These are basically your car decks. Open देखिए, there are no subdivisions. बीच में bulkheads नहीं है. So अगर थोड़ा सा भी पानी इसके अंदर आया तो you can imagine what it can create. And now you imagine आपके यहाँ पे व्हीकल चल रही हैं, कितना एग्जॉस्ट यहाँ पे अंदर इकट्ठा हो सकता है. I think all of you have been to these shopping malls, no? शॉपिंग मॉल्स में भी जाइए, देखिए उन्होंने
बेसमेंट में ये सारी पार्किंग रखी होती एंड देयर आर बिग वेंटिलेटर्स रनिंग, अदरवाइज Yes, sir. कितनी व्हीकल्स कार्स होती हैं, आई ऑलवेज ट्राई टू पार्क द व्हीकल अगर ऊपर ही जगह मिल जाए, नहीं है फिर हम कहते चलो अभी नीचे जाना पड़ेगा। बट उन्होंने भी देखो, आई सो मेनी टाइम्स आई वॉच, फिर मैं कंपेयर करता था उसको शिप के साथ, देखो यार यहाँ पे भी कितना दिस बिग पाइप्स आर रनिंग। अपने नॉर्मल जो यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स हैं एनीवेयर, चाहे दिल्ली में चंडीगढ़ में, सो एनी टाइम यू गो यू नोटिस्ड वहाँ पे भी वही सिस्टम है, कार्स खड़ी है नीचे एंड उसको उन्होंने भी आजकल वो लिफ्टिंग टाइप का प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं, ये कार खड़ी कीजिए उसको लिफ्ट करके ऊपर कर देगा, दूसरे नीचे पार्क कर देंगे। Now imagine these expensive cars, so this cargo is more delicate मेरे को लगता है। कंटेनर तो इधर उधर टच किया कुछ नहीं होता, ये कार तो कहीं टच की स्क्रैच आया तो हो गया काम, नहीं। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। ये देखिए अभी दिस इज जस्ट टू शो यू दिस रैंप्स, काफ़ी टाइम क्वेश्चन आपको रैंप्स के बारे में पूछते हैं कि सेफ्टी कितना, इट्स अ ह्यूज थिंग, उसको आपने वायर से उठाना है, वायर्स की क्या कंडीशन होनी चाहिए, एंड अगेन आपका व्हाट यू कॉल दिस सिक्योरिंग सिस्टम। So before we start lowering it, before we start uncleating, we have to make sure पूरा वेट जो है वायर्स के ऊपर है ताकि वायर्स पे झटका ना आए, एंड देन if everything is okay then we start lowering। कई बार क्लीट्स खुली नहीं और आप स्टार्ट लोअरिंग कर दीजिए तब भी प्रॉब्लम आ जाएगी। चलो ये तो रही आपकी आज के लिए, ठीक है, इनफ। सो सिंपल थिंग, शिप्स आर थोड़ा सा डिज़ाइन में फ़र्क रहता है, अदरवाइज मोस्टली सेम प्रिकॉशंस वेयर द सेफ्टी इज कंसर्न, सेफ्टी ऑफ पीपल, सेफ्टी ऑफ कार्गो एंड सेफ्टी ऑफ योर इक्विपमेंट। Ship. बार बार हाँ जी बोलिए। No, the safety of ship, safety of equipment. Yeah, safety of the ship most important, safety of person first, safety of life first, फिर शिप की है, फिर कार्गो की है, फिर प्रॉपर्टी की है, यस। और हमें तभी कोई अच्छा कहेगा इफ आई कैन डू द गुड जॉब, इजंट इट, एंड ये टीम वर्क, इट इज नॉट दैट अलोन एज अ ड्यूटी ऑफिसर इफ यू थिंक यार मैं सब कुछ कर लूंगा, नो, यू हैव टू हैव एवरीवन एंड यू हैव टू ट्रेन एवरीवन। सो मेनी टाइम्स आप उसको कुछ और काम करने को भेजते हो, कुछ और ही करके आ जाता है, फिर आप बोलते हैं क्या इतनी भी नहीं समझ आती। तो ये लैक ऑफ ट्रेनिंग है, इसीलिए देखा नहीं हमारी ट्रेनिंग बात कम इशारों से काम होना चाहिए, एवरीवन शुड अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट हिम टू डू, एंड सेफ्टी भी वहीं से आती है। चलो एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? सर वो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। हाँ जी बोलिए। सर वो वायर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग का क्वेश्चन था सर, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था Okay. सर, उसको कैसे करना है सर? सर इन्हें वायर 6/36 in mm। या अंडरस्टूड, आई अंडरस्टूड। मैं एक काम करता हूँ कि वी हैव क्लास टुमारो आल्सो, नहीं, या कल हमारा है ये कार्गो हैंडलिंग इक्विपमेंट, इजंट इट? तो आपका क्वेश्चन उसी टॉपिक से रिलेटेड है, समझ गए बच्चे? तो कार्गो हैंडलिंग में सबसे पहली चीज़ आपकी वायर्स ही आ जाती है, कार्गो हैंडलिंग इक्विपमेंट एग्जांपल्स क्रेन, इजंट इट? तो कल हम इसी टॉपिक पे वी आर गोइंग टू डिस्कस। आपने क्वेश्चन भी ठीक निकाला, टाइम भी ठीक निकाला। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा वायर का बताऊंगा, देन वी विल सी वायर्स हैं क्या, उनका डिस्कार्ड क्राइटेरिया क्या। दिस इज बेसिकली कॉल्ड द डिस्कार्ड क्राइटेरिया फॉर द वायर्स, इजंट इट? क्वेश्चन में आपको उसने ये पूछा होगा कि भाई इतनी व्हेन शुड बी, एक सिंपल, सबसे पहले क्वेश्चन को भूल जाइए कि एज अ ड्यूटी ऑफिसर, इमेजिन यू आर अ ड्यूटी ऑफिसर एंड आप डेक पे आते हो, कोई भी वायर है, चाहे वो गैंगवे से ही शुरू करता हूँ, गैंगवे इसलिए शुरू करता हूँ बिकॉज एवरीवन इज वेरी फेमिलियर विद द गैंगवे। आजकल लॉट ऑफ शिप्स आर देयर, किसी ने हो सकता है क्रेन देखी नहीं है, एक आधी क्रेन है या नहीं है, बट नोबडी इज देयर हु इज नॉट सीन द गैंगवे, एंड एवरीवन हैज आई थिंक हेल्प्ड इन चेंजिंग द वायर, ग्रीसिंग द वायर, और सब आई थिंक एज अ कैडेट आप करके आते हो। तो सबसे पहले तो मेरे मन में आता है कि यार मैं अगर ऑफिसर हूँ, ये वायर
कब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, कब मैं इसको रिजेक्ट कर सकता हूँ, कब मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा, चाहे वो गैंगवे की है, चाहे वो क्रेन की है, चाहे किसी भी इक्विपमेंट की है, इवन आपकी लिफ्ट की है, इवन अकोमोडेशन की लिफ्ट है, उसकी वायर का भी यही क्राइटेरिया रहता है। तो सबसे पहले तो मेरे को यही पता होना चाहिए कि कार्गो ये जो वायर्स हैं इनको कंडम करने का प्रोसीजर क्या है और इनको कब ये ठीक, इनकी जो इंस्पेक्शन है, हाउ शुड आई कैरी इंस्पेक्शन एंड किस किस स्टेज पे मैं उसको कंडम करता हूँ। वो जो आपका क्वेश्चन है वन ऑफ द क्राइटेरिया है कि 8 times the diameter if 10% wires are broken, in a length of 8 times the diameter if 10% wires are broken then the wire has to be discarded, isn't it? तो उसमें आपको उसने दे दिया होगा कि सपोज मेरी 20 mm की वायर है 6/24, isn't it? तो 6/24 की वायर है एंड 20 mm उसका डाया है। तो इसमें अगर मैं देखता हूँ 8 times द डाया, 8 times मीन्स 20 into 8 160 mm की लेंथ में, in a length of 160 mm, if 10% of the wires, 10% कितनी होगी 6 into 24 144, टोटल वायर्स कितनी होगी 6 into 24, 6 स्ट्रैंड्स हैं और एक स्ट्रैंड में 24 वायर्स हैं, तो टोटल वायर कितनी होगी इसमें 6 into 24 120 144, इसका 10% कितना हुआ 14 14.4, so if 14 wires are broken in a length of 160 mm the wire has to be discarded, isn't it? यही था ना क्वेश्चन आपका? यस सर, यस। हाँ, मैं बच्चे कल इसको थोड़ा डिटेल में लूँगा, फिर आपको सारा समझ आ जाएगा। इट इज़ नॉट ओनली दिस क्राइटेरिया कि हाँ भाई 14 वायर टूटेंगी तभी मैं करूँगा, 13 वायर टूटी हैं तो नहीं मैं चेंज करूँगा, नो। तो उस क्वेश्चन को आपने थोड़ा इलेबोरेट करना है, डिपेंड्स कि हम वायर को यूज़ कहाँ कर रहे हैं, उसकी कंडीशन क्या है। फार्मूला तो ठीक है, ये एक एम्पेरिकल फार्मूला है, रफ फार्मूला है कि यस इतनी वायर्स अगर आपको टूटी दिखती हैं तो डेफिनेटली डिस्कार्ड द वायर, फिर उसकी स्ट्रेंथ जो है कम हो जाती है। चलो ठीक है, कल हम करेंगे इसको, तो आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। एनीथिंग एल्स? चलो, आई होप ऑल गुड व्हाट वी सॉ टुडे। इसके नोट्स पढ़ लीजिए थोड़े, क्वेश्चन आई थिंक यू कैन वेरी इजीली आंसर, प्रिपरेशन ऑफ स्पेसेस, प्रिकॉशंस, सिक्योरिंग, एनीथिंग। ठीक है, ओके देन वी कॉल इट अ डे। Yes, thank you, sir. ओके बच्चे, ओके, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। या Bye, sir. Take care. वेलकम बच्चे, वेलकम।